Job tuh, boleh. Hello. So good evening, everybody. Am I audible? Hello, am I audible? Okay. So let's continue now. Yesterday I told you that matrix program. I hope you have completed that, right? So how many of you are able to complete that program? Addition of two matrix. Okay, Aditya. अजून कोणी केलं? So logical error, okay, you should definitely, like, I am telling you you should get the logical error, but try to solve that error. Try to solve that, because when you solve logical error, then only you will get the clear idea. Okay. Okay, so don't worry, just try logical error. Whenever you get a logical error, try to solve that error. Okay. Okay. So as I told you yesterday in the program, here just I'll give you one small recap, but you are going to complete this program today. Okay. So as I told you, we have a class matrix operation. In the matrix operation, there is a method called as create matrix. Okay. There is a method called as validate matrix. There is a method called as the matrix addition here. Okay. So one important method is there. See. Okay. Validate is there. Validate is there. Look at this. Here I have a method create matrix. Here I am going to create a number of rows and column for every row. So I will get this matrix. So everybody, are you clear with this code? Please reply. Are you comfortable with this code, everyone? Okay. So here create matrix which has total number of rows are 4, and for every row how many columns do you want? 2 columns, 3 columns, 4 columns and 1 column. 2 column, 3 column, 4 column and 1 column. Okay, remember this. 2 column, 3 column, 4 column and 1 column. For 0th row 2 column, for first row 3 column, for next row 4 column, and after that there is only 1 column. So I will get the matrix 1. I will get the matrix 1. Similarly, you can call this method, you will get the matrix 2. Then validate both the matrix.
Now I want to insert the element in both the matrix. Before matrix addition, we need to add the element. Insert the elements. So matrix 1, matrix 2, okay, matrix 1, matrix 2, matrix 1, matrix 2, but no, just create only one matrix here. For only one matrix I want element right now. तो देखो अभी क्या करेंगे हम लोग, go to the main class, go to main class, create matrix. Okay, then next is create matrix, then add the elements, or you can say that slash n to insert element, third is matrix addition, fourth is matrix subtraction, then matrix multiplication. Okay, enter your choice. If choice is 1, so here as I told you, if ch equal to 1, then allocate memory for matrix 1, matrix 2, put this code inside this bracket. After this, else if ch equal to 2, so then ch equal to 2, then you can call here, insert the, SYSO. ठीक है, एक काम कर दो मी, for some time just I will not add this code here, just remove this. ठीक है, validate both the matrix. If your matrix are valid, then matrix addition, no, before matrix addition, SYSO, enter elements in matrix 1. तो क्या करेंगे इसके लिए? Okay, go to matrix operation, insert element is the method here, okay, so listen carefully, insert element is the method here. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? To insert the element, we need to use the logic I equal to 0, I less than matrix 1 dot length I plus plus, for loop j is equal to 0, j less than matrix 1 of I dot length j plus plus. Okay, listen, I equal to 0, 0 less than total number of rows. First of all, I equal to 0. Okay, then 0 is a less than total number of rows. Suppose I have a 4 rows. Time I plus plus. Okay, then j equal to 0. J is a less than. Suppose 0th row there are 2 columns. Next row there are 3 columns. Next row there are 4 columns. Next row there is only 1 column. Imagine, see, assume that कि for 0 row 2 column, तो जब I 0 होगा तो ये लूप 2 बार घूमेगा, I1 होगा तब ये लूप 3 बार घूमेगा, I2 होगा तो ये लूप 4 बार घूमेगा, I3 होगा तो ये लूप 1 बार यहाँ पे घूमेगा. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स 1 के I and J is equal to matrix 1 of I and J is equal to SC dot next int. So using this loop, you can insert the element in a matrix. Using this loop, you can insert the element in a matrix. तो एक बार element insert हो गए, अभी क्या करना है? मैट्रिक्स एडिशन करना है. क्या करना है? मैट्रिक्स एडिशन. बट रुको, सबसे पहले मेन क्लास में आ जाओ. कम टू द मेन क्लास. तो एंटर element in matrix 1. What is the method name? Tell me. Method name is insert element. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? mo dot insert element, pass the matrix 1. ठीक है,
Next is SYSO, enter elements in matrix 2. Demo dot insert elements, यहाँ पे आएगा मैट्रिक्स 2. ठीक है, ओके. मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2, मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2. तो जब तुम मैट्रिक्स 1 को कॉल करोगे तो ये यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स होगा इसमें जो इंसर्ट होगा ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये मैट्रिक्स 1 के लिए इंसर्ट होगा. जब तुम इसको कॉल करोगे तो यहाँ पे जो इंसर्ट होगा अभी वो मैट्रिक्स 2 के लिए इंसर्ट होगा. एवरीबडी अंडरस्टूड? प्लीज रिप्लाई. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? प्लीज रिप्लाई. Okay, insert element. Okay, fine. That is what we are doing now here. Listen. See, when you call, listen, this is what I already explained. If you are passing this argument, सुनो प्रथमेश कि इसका भी ऑलरेडी मेमोरी अलोकेट हो चुका है. लिसन, इसका मेमोरी ऑलरेडी अलोकेट हो गया. तो अगर तुम यहाँ पे इस मैट्रिक्स को पास करोगे तो अगर इसमें ये एक पैरामीटर है, अगर ये मैट्रिक्स, चलो इसका नाम x ले लो थोड़ी देर के लिए, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट करेंगे. अंडरस्टूड? सेकेंड टाइम यू कैन पास द नंबर मैट्रिक्स 2, यू कैन पास द मैट्रिक्स 2. तो यहाँ पे x मतलब मैट्रिक्स 2, तो इसमें जो इंसर्ट करोगे वो डायरेक्टली मैट्रिक्स 2 को ही जाने वाला है. अंडरस्टूड? यही तो मैंने बोला ना, रेफरेंस वेरिएबल लाइक अ पॉइंटर. कल परसों हमने यही देखा ना. Who told you it is null? You guys are, please understand one thing. I told you, keep the link of the yesterday's program. हम लोगों ने ये कल देखा नहीं क्या प्रथमेश? Tell me. We are calling the create function here. तो यहाँ पे हमने रो और कॉलम अलोकेट कर दिया, राइट? यहाँ से मेमोरी रिटर्न कर दिया. इस मेमोरी को मैं कभी भी अज्यूम करता हूँ कि तुम लोगों ने कल के लेक्चर को कनेक्ट किया होगा. लिसन केयरफुली. आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो द यस्टरडेज सेशन. यहाँ पे हमने मेमोरी रिटर्न किया ना कल. That was different. I solved that error, therefore I changed this code, na? I solved that error yesterday only. What I did yesterday, I called the create function, then I told you allocate number of rows, then allocate number of columns and return the memory. Look at this. Return the memory. तो मैं हमेशा एक बात बताता हूँ तुम लोगों को, याद रखो, सब लोगों के लिए मैसेज है कि मेरा कल का लेक्चर अगर जिसने अटेंड किया होगा, जिसने प्रैक्टिस किया होगा, उसी को आज का लेक्चर समझ में आएगा. अगर मैं फिर से कल का लेक्चर अगर पूरा रिपीट करूंगा तो आज का लेक्चर होगा ही नहीं. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? एवरीबडी, दिस इज फॉर एवरीवन. ओके, ये मैसेज सबके लिए. अगर तुम लोगों ने कल का लेक्चर अटेंड किया होगा तो ही तुम लोग आज का लेक्चर समझ पाओगे. क्लियर? प्लीज रिप्लाई दिस. अंडरस्टूड? इफ समबडी इज लाइक थिंकिंग कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं लिंक लग, तो कल मे बी, अगर देखो कल डाउट है तो कल ही पूछो. इफ यू हैव अ डाउट इन यस्टरडेज कोड, आस्क इमीडिएटली. क्लियर? इसी, एंड दिस इज द रीजन आई एम आस्किंग द स्टूडेंट्स टू रिपीट द बैचेस. तो होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि तुम लोग एक फ्लो में रहते हो. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. इसका रीजन क्या है कि व्हेन यू रिपीट द थिंग्स तो तुम लोग का एक फ्लो रहता है. क्लियर? बिकॉज वी आर हियर जस्ट फॉर 1 hour और पूरा 23 hours यू आर इन डिफरेंट वर्ल्ड एक्चुअली, एंड ओनली 1 hour you are in the Java world. Understood?
So from other completely from the 20 no this no sorry Prathamesh, this is not for you, this is generally the message is for everybody. ओके तो इससे क्या होता है एक लिंक रहता है सेशन में, ये सबके लिए मैसेज है. यू आस्क मी द यू आई विल रिपीट द लेक्चर नो प्रॉब्लम, बट आई एम अज्यूमिंग दैट जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया ना तो मैंने क्या अज्यूम किया, कल मैंने क्रिएट बताया है, ठीक है, यस, कल मैंने इन लोगों को वैलिडेशन बताया था, ओके ठीक है. आज मेरा काम क्या है, आज के लेक्चर का इंसर्ट के आगे जाना है, तभी मेरा नेक्स्ट 1 आवर कंप्लीट होगा प्रॉपरली. तो अभी का काम क्या है मेरा, इंसर्ट करना, एडिशन करना, ओके वो काम मुझे आज कंप्लीट करना है, ठीक है. तो ऐसे मेरा अजम्पशन रहता है. तो नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू इंसर्ट द रिकॉर्ड, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग. कल मैंने जब तुम्हें बोला कि इसको कंप्लीट करो, टेल मी कितने लोगों ने इसको ट्राई किया, टेल मी फ्रैंकली. जब मैंने तुम्हें कल बोला कि प्लीज कंप्लीट दिस प्रोग्राम, आदित्य ने ट्राई किया, नम्रता ने, ओके 1 2 3 4 5 5 पीपल, 6 पीपल. Okay, good. At least there are people. Okay, good, no problem. ठीक है. So at least there are some people those who are doing and trying at least. ठीक है. तो ये एटलीस्ट ट्राई करो. जब मैंने आज तुम लोगों ने ग्रुप पे देखा होगा, मैसेज देखा तुम लोगों ने, 12 lakhs का पैकेज है, प्रतीक और क्या अविनाश. तो इन लोगों को पैकेज ऐसा ही नहीं मिला है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऐसा एक भी लेक्चर नहीं होगा, एक भी टास्क नहीं होगा जो मैंने बोला और इन लोगों ने नहीं किया. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. From last 1 year, even Avinash is there with me from, I guess, from diploma first semester. Pratik is there from more than 1 year, last more than 1 year. बट ऐसा एक भी लेक्चर नहीं है जिस लेक्चर में मैंने कुछ बोला और उन लोगों ने ट्राई नहीं किया, और उसका ये आउटपुट होता है. लुक एट दिस. सो 12 लाख का पैकेज इज नॉट द जोक. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. Yeah, the point, yes, this hard work is very hard work. Instead of hard work, you can say that Vaishnavi, the consistency is very important. You know, even you are from 2018 with me, right? Like, okay, so and Avinash is from your like senior. He's your senior, right? ठीक है. तो देखो वही मैं बोल रहा हूँ कि ट्राई टू अंडरस्टैंड. द पॉइंट इज दैट सिंसियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं सबसे पहले यही बोलता हूँ सबको कि सिर्फ क्लास लगा लिया, ओके, तो इससे कुछ होता नहीं है कि मैं कॉलेज अच्छा मिल गया, कुछ नहीं होने वाला इससे भी. आज तुम लोगों ने 12 तक तुम लोगों को बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज के लिए तुम लोगों ने स्ट्रगल किया. नाउ कॉलेज भी तुम्हारे पास है, बट आई एम टेलिंग यू, नो यूज ऑफ द कॉलेज. फर्स्ट थिंग इज what thinking you have and what like knowledge you have. This is very important. ठीक है. कॉलेज तो आएगा बाद में, पहले तुम्हारा क्या तुम्हारे पास नॉलेज है वो इंपॉर्टेंट है. इसके लिए सिंसियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऑलवेज आई एम रिपीटिंग, प्लीज कनेक्ट यस्टरडेज लेक्चर. ओके, इफ यू मिस द लेक्चर प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर. तो मेरे हर लेक्चर में मेरा पहले लेक्चर का अगर एग्जांपल किया होगा तो नेक्स्ट लेक्चर इजी होगा. रिमेंबर दिस. ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि नाउ वी हैव वैलिडेट मैट्रिक्स मेथड. ओके, वैलिडेट मैट्रिक्स मेथड. सो आई विल रिपीट दिस. देखो, तो कल हम लोगों ने क्या किया था, वी हैव डिक्लेयर 3 array, 3 मैट्रिक्स, मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2, मैट्रिक्स 3. then 1 for create matrix, 2 for insert element, then 3 for like a matrix addition, 4 for matrix subtraction. Enter your choice. If choice is 1, okay, allocate a memory for matrix 1, allocate memory for matrix 1. तो यहाँ पे तुमने create को कॉल किया. ये देखो अविनाश, नहीं प्रथमेश, इसको कॉल किया. यहाँ पे पूछा कितने रो चाहिए, मैंने बोला 4 रोज. तो और उसके बाद मैंने 4 रोज अलोकेट कर लिए. क्लियर. फिर मैंने बोला एंटर द नंबर ऑफ कॉलम फॉर ईच रो, एंटर नंबर ऑफ कॉलम फॉर ईच रो. तो यहाँ पे होता क्या है, देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे आएगा 1 2 3 4. आई विल गेट द 4 रोज हियर. ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पे आएगा 0 1 2 3. तो इसके बाद क्या किया हम लोगों ने, i equal to 0. I is here right now.
तो 0 लेस देन है 4 से, ठीक है। हाउ मेनी कॉलम्स डू यू वांट इन द 0+1 रो, मतलब फर्स्ट रो। आई सेड आई वांट 2 कॉलम्स। तो यहाँ पे मैट्रिक्स 0 के लिए तुम 2 कॉलम एलोकेट करो, तो यहाँ पे तुम्हें 2 कॉलम मिल जाएंगे। ये देखो, ये 2 कॉलम मिल गए, राइट। इसके बाद आई बिकम्स 1, 1 is less than 4. How many column do you want for 1+1? Second row. I want a 3 columns. So यहाँ पे for the row 1, allocate the 3 columns. So here I becomes a 1. Go to the next index. Allocate 3 columns here. After this I becomes 2. 2 less than 4. How many columns do you want? 2+1 मतलब 3 third row के लिए. So here 4 column I want. How many column? 4 columns I want. For the second row, I want a 4 columns. I will move to the next position and allocate the 4 columns here. इसके बाद क्या होगा? I becomes 3. 3 less than 4. 3+1 मतलब 4th row के लिए कितने कॉलम चाहिए? एक ही कॉलम चाहिए। तो थर्ड इंडेक्स के लिए एक कॉलम। तो यहाँ पे आएगा I becomes 3 and here you will get 1 column. तो ये हो गया मैट्रिक्स 1। तो ये मैंने कल मेमोरी एलोकेट किया था, याद रखो। जिन लोगों को लिंक नहीं है कल का, लिसन। तो कल मैंने मेमोरी एलोकेट किया, रिटर्न दिस मैट्रिक्स। ये न्यू मतलब मेमोरी एलोकेट हो गया, उस मेमोरी का नाम मैट्रिक्स है। इसको रिटर्न कर दिया, रिटर्न होगा तो मेन के पास जाएगा, मेन उसको इस मेमोरी में डाल देगा। अभी तुम्हारे सामने नेम सेम है, इसलिए तुम्हें कुछ कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। मे बी अगर मैंने इसका नाम एक्स लिया होता ना सपोज, तो इसका मतलब जो है मेरा मेमोरी यहाँ पे एक्स के पास आ गया। तो मतलब इसी मेमोरी को, इसी मैट्रिक्स को मैं एक्स बोलूंगा। लिसन, बट आई विल कीप द सेम नेम, आई विल कीप द सेम नेम। बट इमेजिन कि अगर इसका नाम एक्स भी होता ना, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो इसका, इस मेमोरी का नाम क्या है? एक्स है, याद रखो। इमेजिन करो एक्स है या मैट्रिक्स 1 है, ठीक है। चलो इसको मैट्रिक्स 1 लिखते हैं, मैट्रिक्स 1। आफ्टर this allocate memory for matrix 2, call the create matrix, again how many rows do you want? I said I want 4 rows once again। तो उसके लिए एक मेमोरी एलोकेट करो, तो ये आएगा मेरा नया मेमोरी। लुक एट दिस इज माय न्यू मेमोरी। ओके, दिस इज द न्यू मेमोरी, राइट। तो यहाँ पे होता क्या है फिर? फॉर एवरी रो allocate the columns, like again 2 row column, 3 column, 4 column। return the memory to the main class, return this memory to the matrix, now matrix 2। ये जो मेमोरी मुझे मिला, so I got a memory here, I got the memory here 0 1 2 3 and इसका नाम होगा अभी matrix 2। So the first one is matrix 1 and this is the matrix 2। Okay, तो ये matrix 1 है, ये matrix 2 है, remember this। Validate matrix 1 and matrix 2 you can pass here। तो ये matrix 1 और matrix 2 को हम validate करेंगे। कल मैंने ये तुम्हें बताया था कि नंबर ऑफ रो दोनों के सेम है क्या, फिर दोनों के कॉलम चेक करो, सेम होगा तो ट्रू रिटर्न करो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करो। सो यहाँ से जो भी रिटर्न होगा ट्रू और फॉल्स, वो हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे। देन इफ द बुलियन वैल्यू इज ट्रू, देन नाउ यू कैन से दैट। अभी एक आज का लेक्चर शुरू हो गया, ये था कल का लेक्चर, ठीक है। यहाँ तक था कल का लेक्चर, राइट। सो इन टुडेज लेक्चर एज आई टोल्ड यू, एंटर द एलिमेंट इन मैट्रिक्स 1, call the matrix 1। so your matrix name is same right now, matrix 1। तो ये वही मेमोरी है जो अभी हम लोगों ने एलोकेट किया है, यही मेमोरी है वो। अंडरस्टूड नाउ एवरीबॉडी, क्लियर? ये जो मेमोरी हम लोगों ने एलोकेट किया, इसी मेमोरी में हम लोग इंसर्ट करने वाले हैं डेटा को। अंडरस्टूड? प्लीज रिप्लाई when you are passing the matrix 1, when you are passing the matrix 1 here, so you are going to insert your values inside this matrix, ठीक है। तो इसमें भी ये कोड भी मैंने पहले ऑलरेडी ये बता दिया तुम्हें। ओके, फर्स्ट डे पे मैंने तुम्हें यही सिखाया था कि 2 डायमेंशन में एलिमेंट कैसे इंसर्ट करना। लिसन केयरफुली, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हाउ टू इंसर्ट द एलिमेंट इन 2 डायमेंशन अरे। मतलब लाइक टुडे इज अ फ्राइडे, सो वेडनेसडे आई टोल्ड यू दिस,
कि तो अभी ये तुम्हें लिंक करना चाहिए। हाँ सर, वेनेसडे को आपने बताया था, यस हमें समझ में आ गया ये कोड। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने अगर उस लेक्चर को उसी दिन किया तो इट्स रियली इजी फॉर बोथ ऑफ अस। तुम्हें भी इजीली समझ में आएगा, मैं भी तुम्हें इजीली समझा पाऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेनेसडे को मैंने तुम्हें ये बताया था कि हाउ टू इंसर्ट द एलिमेंट इन मैट्रिक्स वन। तो पहले रो जीरो होगा, फिर जीरो नंबर नंबर के रो के कितने कॉलम्स है उसके लिए एलिमेंट इंसर्ट करो, फिर वन टू थ्री। तो ये हो गया मैट्रिक्स वन के एलिमेंट्स। सिमिलरली एंटर एलिमेंट इन मैट्रिक्स टू, call the matrix 2, insert element in matrix 2 now here, insert the element in matrix 2। तो दोनों मैट्रिक्स में एलिमेंट चले गए, राइट। ओके, अभी करना है मैट्रिक्स एडिशन। यहाँ पे करना है मुझे मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। चलो यहां तक कुछ डाउट प्लीज रिप्लाई, इफ एनी क्वेश्चन आस्क मी। ओके, यहां तक सबको क्लियर है ना? प्लीज रिप्लाई। ओके, सो मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडी यहां तक तो आ गए। अभी मैट्रिक्स एडिशन करना है। तो मैट्रिक्स एडिशन जो करना है उसके लिए मुझे मैट्रिक्स 3 की जरूरत है, क्योंकि एडिशन कहां पे आएगा? एडिशन आएगा मैट्रिक्स 3 के अंदर। तो यहां पे मैं लिखूंगा मैट्रिक्स 3 इज इक्वल टू एड मैट्रिक्स, एड मैट्रिक्स। इसको पास करो मैट्रिक्स 1 कॉमा मैट्रिक्स 2, add matrix, go to the this place now and here matrix addition जो है, इसको मैट्रिक्स एडिशन लिखा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। to this place and call this मैट्रिक्स एडिशन को कॉल कर लिया। मैट्रिक्स एडिशन को कॉल कर दिया। एरर क्यों आ रहा है पहले ये चेक करो, क्या बोल रहा है ये? cannot convert from this to this, matrix 1 matrix 2, why this error? हेलो, तो मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2, तो ये आएगा तुम्हारा ओके। हाँ दैट्स राइट, इंटीजर। ओके, सो नाउ एडिशन, कोड फॉर एडिशन, राइट। तो अभी एडिशन करने के लिए यहाँ पे कुछ कोड लाइक देयर इज सम कोड इज मिसिंग हियर, कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट? टू परफॉर्म द एडिशन यहाँ पे और कुछ काम करना पड़ेगा, कौन बताएगा? यस टेल मी। टू परफॉर्म द एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, फॉर व्हाट? मेमोरी एलोकेशन फॉर व्हाट? नहीं, ये तो ऑलरेडी चेक कर लिया, मैट्रिक्स आर सेम और नॉट। अगर मैट्रिक्स सेम है तो ही मैं एलिमेंट एक्सेप्ट कर रहा हूं, नहीं तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं ना मैट्रिक्स के एलिमेंट एक्सेप्ट करने में, ठीक है। टेकिंग द रोज एंड कॉलम फॉर मैट्रिक्स 1 वो तो ऑलरेडी हो चुका है। हाँ दैट्स राइट ओमकार, करेक्ट।
memory allocation for matrix 3. Very good. Memory allocation for matrix 3. Allocate a memory for matrix 3. Allocate memory for matrix 3. ये काम बाकी यहाँ पे मेमोरी allocation for matrix 3. ठीक है, तो कैसे करेंगे अभी? इसके लिए क्या करना पडेगा? कसं काय होईल बरं विदाउट अलोकेशन? सांग. नल पॉइंटर एक्सेप्शन आहे जर विदाउट अलोकेशन केलं तर. जर तुझ्याकडे इथे इलेमेंट आहे, सपोज इफ यू हॅव इलेमेंट 10 20 30 40 50 60 70 80 90 and 100. So 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. तो ये तुम्हारे दोनों मैट्रिक्स है, राइट? ये दोनों मैट्रिक्स है. नाउ वेयर यू विल स्टोर द एलिमेंट? टेल मी वेयर इज द मेमोरी हियर. सपोज दिस इज योर कंप्यूटर मेमोरी. टेल मी द वेयर इज द मेमोरी 3. Namrata. Without allocating memory for matrix 3, you can't perform the addition. So now you need a memory here for matrix 3. But memory कैसे लेंगे? यूजर थोड़ी एंटर करेगा. नहीं, मेमोरी कौन एंटर करेगा? कोई नहीं. मेमोरी कैसे मिलेगा? जो भी मैट्रिक्स 1 का साइज है और मैट्रिक्स 2 का साइज है, आइदर मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2, इनका जो स्ट्रक्चर है नंबर ऑफ रोज और कॉलम का, वही मैट्रिक्स 3 के लिए होना चाहिए. नो, इसका मतलब होगा तुम्हें मिलेंगे यहाँ पे कितना रो? 4 रो. बट कॉलम तुम्हें कौन सा मिलेगा? व्हाट इज दिस हियर? मैट्रिक्स 1 ब्रैकेट में क्या है ये? तो कॉलम कहाँ मिलेगा? रो तो मिल जाएंगे. दैट्स राइट प्रथमेश. बट वी लाइक नो, सो कॉलम नहीं मिलेंगे यहाँ. कॉलम के लिए देखो क्या करना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? allocate memory for matrix 3. So I will allocate a matrix 3 is equal to मैट्रिक्स 3 के लिए मैं अभी क्या करूंगा? देखो, is equal to new integer of matrix 1 dot length. But column I don't know. मैट्रिक्स 1 के जो रो है वो यहाँ पे आएंगे, बट कॉलम आई डोंट नो. ओके, रो फ्रॉम द मैट्रिक्स 1. ओके, 1 or 2 rows from मैट्रिक्स 1 or 2. ओके, बट अभी कॉलम के लिए क्या करेंगे? फॉर कॉलम यूज द फॉर लूप. फॉर लूप I equal to 0, I less than matrix 3 dot length I plus plus. तो यहाँ पे क्या करेंगे? देखो, मैट्रिक्स 3 के 0 रो के लिए न्यू इंटीजर मैट्रिक्स 1 का I रो का लेंथ. इसका मतलब क्या है? सुनो, कि फॉर मैट्रिक्स 3 I want 4 rows. फॉर मैट्रिक्स 3 I want 4 rows. So इसका मतलब यहाँ पे you will get the 4 rows. Look at this. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Okay, but column we don't know. Column we don't know right now. I don't know the columns right now. I equal to 0. 0 1 2 3 4. I equal to 0. 0 लेस देन है मैट्रिक्स 3 के लेंथ से. यस, तो मैट्रिक्स 3 के 0th रो के लिए मैट्रिक्स 1 का 0 रो के जितने, लिसन केयरफुली, मैट्रिक्स 1 के 0 रो के लिए जितने लेंथ है, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स 3 के 0 रो के लिए मैट्रिक्स 1 का 0 रो के लिए जितने कॉलम से उतने यहाँ पे अलोकेट करो. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक? प्लीज रिप्लाई. मैट्रिक्स 3 के 0th रो के लिए मैट्रिक्स 1 का 0 रो का जितना कॉलम है उतना अलोकेट करो. क्लियर? I becomes 1. I becomes 1. I will move to the next position. I will go to the next position.
1 लेस देन 1 इज लेस देन 4। मैट्रिक्स 3 के 1 रो के लिए, मैट्रिक्स 3 के 1 रो के लिए मैट्रिक्स 1 का 1 रो का जितना लेंथ है उतना एलोकेट करो। मैट्रिक्स 3 के 1 रो के लिए मैट्रिक्स 1 के 1 रो के जितने कॉलम से उतने एलोकेट करो। So here I will get a column from this matrix. ठीक है, so then I becomes 2, 2 less than 3। मैट्रिक्स 3 के सेकेंड रो के लिए मैट्रिक्स 1 के सेकेंड रो के जितने कॉलम है उतना एलोकेट करो। So this I will move to the next position। ठीक है, and then I becomes 3, 3 less than 4। मैट्रिक्स 3 के थर्ड रो के लिए मैट्रिक्स 1 का थर्ड रो का जितना कॉलम है उतना एलोकेट करो। तो ये आ गया इसका मेमोरी। एवरीबॉडी क्लियर नाउ? Understood? So I got a memory for the matrix 3। I got the memory for the matrix 3। Here I got the memory for the matrix 3। ठीक है, ठीक है। Now after this here perform the addition। एडिशन कैसे परफॉर्म करेंगे? फॉर लूप i इक्वल 0, i लेस देन मैट्रिक्स किसी का भी लेंथ ले लो, नो प्रॉब्लम, i प्लस प्लस फॉर लूप j इक्वल 0, j लेस देन मैट्रिक्स j इक्वल 0, j इज लेस देन matrix 1 of I dot length and j plus plus and here I 0 0 less than this, j 0 0 less than this। अभी क्या करेंगे देखो, नहीं उसका मतलब रिपीटिशन ऑफ कोड होगा। रुको एक, एक्चुअली आई फॉरगॉट टू ऐड वन मेथड हियर बिफोर एडिशन। रुको बताता हूं मैं, जस्ट वेट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैट्रिक्स 3 के i और j के लिए मैट्रिक्स 1 का i एंड j प्लस मैट्रिक्स 2 का i एंड j, तो इससे एडिशन हो जाएगा। बट इनको प्रिंट करने के लिए I will take the another method display matrix, जिसमें हम लोग मैट्रिक्स पास कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, use the same logic to print the data। फिर ये लाइन चेंज करो, यहाँ पे change this line and SYSO यहाँ पे लिखो मैट्रिक्स ऑफ I and J plus space and here new line, that's it। ठीक है, तो ये 0 रो 0 लेस देन है मेरा 4 से 0 कॉलम, 0 कॉलम मतलब जो भी j 0 इज लेस देन 0 रो का कॉलम जो भी होगा वो, हाँ ये रिटर्न करना बाकी है। 1 सेकेंड, मैट्रिक्स 3 को रिटर्न करो यहाँ से, दैट्स राइट। और यहाँ पे प्रिंट करो, ये जो लूप ये जो मेथड रहेगा ना ये सबको प्रिंट करेगा, मतलब मैट्रिक्स 1 को भी, मैट्रिक्स 2 को भी और एडिशन को भी। रुको दिखाता हूं मैं, एंड रिटर्न टाइप इज हियर। ऐसे देखो, इस टाइप के प्रोग्राम तुम लोगों को ट्राई करना ही पड़ेगा। ओके, जब तुम ट्राई करोगे तभी तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होगा। तो देखो अभी मुझे प्रिंट करना है, यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स 1 इज
और कॉल करो mo डॉट डिस्प्ले मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स 1 को कॉल करो. सिमिलरली मैट्रिक्स 2 इज and matrix addition is matrix 3. ऐसे मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स एडिशन. तो इसको कंपाइल करो और रन करके देखो. देखो एक ही मेथड ने सबका काम कर दिया. समझ में आ रही है? ओनली वन मेथड आई एम यूजिंग फॉर I am using to display matrix 1, I am using to display matrix 2 as well as matrix 3. Understood? Only one method I am using to display matrix 1, matrix 2 and matrix 3. Everybody clear? Please reply. One for create matrix. How many rows do you want? I want 3 rows, 1 column, 2 column, 3 column. How many rows do you want? 3 rows, 1 column, 2 column, 2 column. देखो गलत किया मैंने. Addition not possible. That's it. Why should I accept the data? अगर एडिशन पॉसिबल नहीं है तो मैं क्यों रो और डेटा एक्सेप्ट करूं? Am I right? अगर एडिशन पॉसिबल ही नहीं तो मैं क्यों एंटर करूं रोज और कॉलम, है कि नहीं? टेल मी. डेटा इंसर्ट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इफ द एडिशन इज नॉट पॉसिबल. once again run the program. Yeah, that's right. To save the time, create matrix 3 rows 1 column 2 column 3 column, 3 rows 1 column 2 column 3 column. Enter element 10 20 30 40 50 60. 10 20 30 40 50 60. ये देखो, ये हो गया मैट्रिक्स 1 का डेटा, ये हो गया मैट्रिक्स 2 का डेटा, ये हो गया दोनों का एडिशन. I hope you understood now. Everybody, please reply. No, there is no inbuilt function for integrations. You have to write your own logic. Okay, you have to understand the formula and then implement that formula with the help of array, for loop and functions. Okay. Okay. So guys, this is the way you have to perform the. I have completed the example for addition of two matrix. You guys are going to complete for subtraction, multiplication and transpose. Can you able to complete these three? Subtraction, multiplication and transpose. Tell me. तो देखो यही होता है सीखने का तरीका. अगर मैंने तुम्हें एबीसी बताया तो उसके आगे तुम लोग कुछ करो, उसके आगे तुम लोग खुद कुछ ट्राई करो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर दिस. देखो कोई भी चीज को, जब तुम लोग कोई भी चीज का एग्जांपल ले लो,
ओके, घर में मैंने तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल दिए रियल टाइम के, कि अगर तुम्हें ड्राइविंग सीखना है तो तुम बोलते हो ना कि चलो, जो एग्जांपल लो, तुमने ड्राइविंग का क्लास लगा दिया कहीं पे, और उस ड्राइवर ने क्या किया, रोज वो ड्राइवर ही ड्राइविंग कर रहा है और वो रोज बोल रहा है तुम लोग को, देखो आज मैंने तुम्हें पहला गियर सिखाया, आज मैंने तुम्हें सेकंड गियर सिखाया, आज मैंने थर्ड गियर सिखाया, ऐसे पूरे 15-20 दिन हो गए। एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग तुम क्या बोलोगे बताओ तो मुझे, टेल मी। अगर कहीं पे ड्राइविंग तुम सीख रहे हो और एवरी डे योर ड्राइवर इज ड्राइविंग अ कार और तुम सिर्फ बैठे हो बाजू में, ऐसे ड्राइविंग सीखोगे तुम, टेल मी। हाँ, करेक्ट है। व्हेन विल आई ड्राइव, दैट्स राइट। मी कधी तो करेक्ट है, राइट। ओके, सो जब तक तुम लोग खुद ड्राइविंग नहीं करते तब तक तुम ड्राइविंग नहीं सीखोगे। तो ऐसा ही होता है कोडिंग में भी, जब तक, अभी मेरा काम है तुम्हें गाइड करना, प्रॉपरली गाइड करना, नॉट ओनली लर्निंग द लैंग्वेज, वी आर नॉट लर्निंग अ जावा लैंग्वेज, ठीक है, वी आर लर्निंग अ डेवलपमेंट। अभी डेवलपमेंट तो तुम्हें सीखना है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे सीखना है। कुछ गलत हुआ तो आई एम हियर टू हेल्प यू फॉर दैट, राइट। तो जब तुम खुद स्टार्ट करोगे कोड को स्टेप बाय स्टेप, मैंने कभी भी पूरा कोड एक साथ नहीं लिखा। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते, अभी उन लोगों ने इसका फोटो ले लिया होगा एंड देन टेक द फोटो टाइप द कोड, टेक द फोटो टाइप द कोड, डोंट डू दैट। मैंने कोड ऐसे किया ही नहीं। मैंने क्या किया, मैंने पहले सिर्फ एक क्लास बनाया, मैंने सबसे पहले उसको क्रिएट मेथड को रन करके देखा, यस इट्स वर्किंग, या देन गो टू द वैलिडेट मेथड, यस वैलिडेटिंग डेटा, यस करेक्ट है। उसके बाद मैंने इंसर्ट को चेक किया, इंसर्ट हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। उसके बाद तुम चाहिए तो डिस्प्ले को चेक कर लो, मैट्रिक्स 1 डिस्प्ले हो रहा है क्या, हो रहा है। 2 हो रहा है क्या, यस हो रहा है। उसके बाद फिर एडिशन करो। अगर सारा प्रोग्राम एक साथ लिख लोगे और रन करोगे तो 101% रन नहीं होगा। रिमेंबर दिस, 100% के ऊपर जाके बोल रहा हूं मैं, क्लियर। अगर पूरा कोड, इतना बड़ा कोड अगर एक साथ लिख लोगे और फिर रन करोगे, 101% तुम्हारा कोड कभी रन नहीं होगा। Okay, and nobody can solve the errors also of your code. There is a technique. There is a technique to solve the error as well as to write the code. Please understand. Okay, there is a technique. ठीक है, एक एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें मैं, कि कभी भी इंडस्ट्री में भी जो भी चीजें होती है ना, उनको करने का एक तरीका होता है। आज 10 साल का एक्सपीरियंस हो, 20 साल का एक्सपीरियंस हो, फिर भी वहां पे इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेस। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट प्रोसेस। ओके, once again. तो यहाँ पे तुम अगर इसको देखोगे, इस मैसेज को, एक सेकंड रुको, 1 मिनट। तो one of the company has sent me this detail today for one assignment, ठीक है। तो देखो, ये होता है एजेंडा ऑफ द जावा रियल टाइम प्रोजेक्ट। तो क्या लिखा इन लोगों ने, डोमेन। डोमेन का मतलब होता है बीएफएस। अभी बीएफएस का मतलब होता है बैंकिंग एंड फाइनेंस और इंश्योरेंस, डोमेन है। और टेलीकॉम और रिटेल। टेलीकॉम मतलब ये जो हमारे पास मोबाइल फोन होता है ना, जैसे हमारे पास एयरटेल का सिम कार्ड है, हमारे पास लाइक सपोज बीएसएल का है, जियो का है, ये जो सिम कार्ड वगैरह होता है, ठीक है। रिटेल, रिटेल मतलब ये अमेजोन वगैरह या कुछ शॉपिंग एप्लीकेशन वगैरह। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट डिजाइनिंग, प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर, प्रोजेक्ट टेक्निकल फ्लो, ओके, ये तो बाद में आएगा। इसके पहले अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आई विल टेल यू, देखो जावा कोडिंग स्टैंडर्ड्स, ये लाइन को देखो। ये बाद में तो आएगा, जो जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ है, यहाँ पे काफी चीजें है इसमें। तो ये किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ये चीजें लगती है, देखो, लुक एट दिस। तो ये लाइन क्या है, जावा कोडिंग स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब होता है जो भी चीज करो एक सिस्टमेटिक वे से करो। मैं तुम्हें फिर से एग्जांपल बताता हूँ कि
तुम घर में देखो, घर का ही एग्जांपल लो, क्योंकि तुम लोग अभी इंडस्ट्री से कनेक्ट नहीं हो, बट स्टिल ट्राई टू कनेक्ट विद योर, लाइक तुम्हारे घर में तुम जब कुछ चीजें रखते हो, या इफ योर लाइक योर मदर इज लाइक कुकिंग अ फूड फॉर यू सपोज, तो प्लीज अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व। हर चीज का एक सीक्वेंस होता है और सिस्टमेटिक वे होता है, तभी उस वो जो तुम प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी फूड तुम घर में बना रहे हो, वो अच्छी तरीके से बनने वाला है। एम आई राइट? टेल मी, कोई भी अगर तुम फूड तुम प्रिपेयर करोगे, इफ यू आर गोइंग टू कुक सम रेसिपी, उसका एक सीक्वेंस होगा, ठीक है? उसका क्या होगा, एक सीक्वेंस होगा, राइट? उस सीक्वेंस को अगर फॉलो किया तो ही जो रेसिपी बनेगा वो अच्छा बनेगा। उसमें थोड़ा भी चेंज हो गया तो भी रेसिपी चेंज हो जाएगा। क्लियर? उसमें थोड़ा भी प्रॉब्लम हो गया तो क्या होगा, रेसिपी चेंज होने वाला है, राइट? तो इसमें होता क्या है, इट इज नॉट अबाउट, घर में वही एग्जाम्पल लो कि एवरी डे सपोज योर मदर इज डूइंग अ टी फॉर यू, एक एग्जाम्पल ले लिया। बट अगर कभी तुमने अगर टी बना दिया, किसी ने तुम में से किसी ने चाय बना दिया तुम में से, तो उसके बाद लोग चाय छोड़ देंगे, ऐसा हो सकता है। क्लियर? एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं। क्लियर? बट घर में अगर इफ योर मॉम इज लाइक प्रिपेयरिंग अ टी, ओके, सो एवरीबडी लाइक्स दैट। बट अगर किसी और ने बना दिया एग्जाम्पल, तो तुम्हें समझ में आता है ये क्या है। तो पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि ये क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि घर की जो इंग्रेडिएंट्स है वही है। क्लियर? हाँ, तो ट्राई टू अंडरस्टँड की देखो, म्हणजे सांगायचं तात्पर्य काय आलं, की घरात साखर तीच आहे, चहा पावडर तीच आहे, दूध तेच आहे, सगळं काही तेच आहे, पण प्रॉब्लेम कुठे आला? प्रोसेस. अंडरस्टूड? Process. So very important thing is that the process. So you have to learn the process. You have to learn the process. तो प्रोसेस सीखने के लिए कोडिंग का एक सिस्टमेटिक वे में लिखना बहुत जरूरी होता है, याद रखो। तो वही मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोड जब लिखोगे तो डोंट राइट द कोड, इंजॉय योर कोडिंग। उसमें अगर कुछ एरर आ रहे, लॉजिकल एरर आ रहे, तो उसको तो तुम लोगों ने सॉल्व करना सीखना चाहिए। ओके, तो लॉजिकल एरर आनी ही चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि एरर आ गया तो कैसे सॉल्व करें, एरर आ गया तो कैसे इसको तो वही तो हमें सीखना है ना, एरर आया तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो एक काम करो, आज प्लीज कंप्लीट दिस एप्लीकेशन। और इसके अलावा आई वांट वन एप्लीकेशन फ्रॉम यू पीपल, जैसे हम लोगों ने जिन्होंने पाइथन किया या जिन्होंने सी में भी बनाया होगा, यू क्रिएट अ वन एरे। आई विल सजेस्ट टेक द एरे ऑफ स्ट्रिंग। सबसे पहले वेज मेन्यू मैंने बना दिया यहाँ पे, इस तरीके से तुम लोग कर सकते हो। तो वेज कोर्स 1 ये आएगा, वेज कोर्स 2 ये आएगा, वेज कोर्स 3। तो लेट मी चेक योर इनोवेशन, फिर मैं बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा वेज का प्राइस आएगा, यहाँ पे मेरे सामने पहले का प्राइस है 200 रुपीज, फिर 250 रुपीज, फिर 300 रुपीज। ये होगा मेरा वेज कोर्स का प्राइस। ओके, इस 0 का प्राइस इस 0 के पास, इस 1 का प्राइस इस 1 के पास, इस 2 का प्राइस इस 2 के पास। ओके, याद रखो इसको। अभी तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे सामने मेनू आएगा। मेनू, तो मेनू में आएगा सीरियल नंबर, उसके बाद मेन्यू, और उसके बाद आएगा प्राइस। सीरियल नंबर 1, मेनू का नाम है वेज 1 और इसका प्राइस आएगा 200। सीरियल नंबर 2 वेज 2, प्राइस आएगा 250। ओके, यहाँ पे आएगा टोटल, नहीं टोटल अभी नहीं, ये आएगा तुम्हारे सामने मेनू। एंटर योर चॉइस, तुमने चॉइस दे दिया 1, तो यहाँ पे लिखो योर ऑर्डर has been placed successfully, order number 1 is received। ओके, सो यहाँ पे दे दिया हमने 1, हाँ 1 मतलब वेज, याद रखो ये वाला कोर्स होगा। तो यहाँ पे लिखो do you want to order more items, और प्रोडक्ट कुछ भी होगा, वेज का होगा या इसे में प्रेस 1। फिर जब रेसिव 1 प्रेस करोगे तो ये तुम्हारे सामने और एक बार आ जाएगा।
सो एंटर योर चॉइस तुमने दे दिया यहाँ पे सपोज 3, पहला चॉइस 1 था याद रखो, नेक्स्ट चॉइस 3 है, तो ये फिर से प्रिंट हो जाएगा योर ऑर्डर नंबर दिस इज रिसीव। ओके, यहाँ पे लिखो ऑर्डर नंबर 3 रिसीव्ड, और यहाँ पे हम लिखेंगे do you want to add, order the more items press 1 और for bill press 2। यहाँ पे वही होगा, और for the bill press 2। अभी 2 दे दिया मैंने, 2 प्रेस कर दिया, तो तुम्हारे सामने आएगा बिल इस तरीके से। बिल इज सबसे पहले आएगा डेट, यहाँ पे अभी देखता हूँ मैं डेट कैसे लाओगे तुम लोग। इसके लिए थोड़ा हिंट देता हूँ मैं कि यू कैन देखो लिख के देता हूँ यहाँ पे system डॉट आउट डॉट println, यहाँ पे लिखोगे न्यू डेट नाम का एक इनबिल्ट क्लास है यूटिल पैकेज के अंदर, तो इंपोर्ट कर लो। इसके लिए ऊपर लिखना पड़ेगा, ये यहाँ पे मत लिखो, जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, जैसे स्कैनर लिखा ना मैंने वैसे डेट लिख सकते हो तुम लोग, तो इससे तुम्हारा डेट प्रिंट हो जाएगा उस दिन का जो भी करंट डेट होगा। फिर उसके बाद आएगा सीरियल नंबर, तुमने क्या दिया था वो, तो तुमने बोला था जैसे कि 1, उसके बाद तुम्हारा मेनू कौन था उसका नाम आएगा वेज 1, उसका प्राइस क्या था वो यहाँ पे आएगा, उसका प्राइस था सपोज 200 रुपीज। उसके बाद तुमने 3 प्रेस किया था वेज 3, उसका प्राइस था 300 रुपीज, इसका टोटल आ गया वो लिखो यहाँ पे, टोटल आ गया 500, CGST आएगा इसके ऊपर। चलो क्या होगा जो भी आएगा, एग्जाम्पल लो 20 रुपीज, SGST आएगा 20 रुपीज। ओके, फाइनल टोटल आएगा 540, तो ये आएगा तुम्हारा फाइनल बिल, और नीचे लिखोगे थैंक यू विजिट अगेन, विजिट अगेन ऐसे। तो आगे जाएंगे तो मैं तुम्हें यहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस सिखाऊंगा कि इसको आगे पेमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बट इस तरीके ये छोटा सा स्ट्रक्चर दिया है मैंने, इसको तुम तुम्हारे अजम्पशन से बनाओ, कैसे बनाओगे। अंडरस्टूड द क्वेश्चन, प्लीज रिप्लाई। एवरीबडी क्वेश्चन इज क्लियर, प्लीज रिप्लाई। तो ये तो मेरा एक ही वेज मेनू का है, तो मेरे सामने ये बाकी में तुम्हें भी देखो क्या होता है कि आई डोंट वांट टू लाइक नो, आई डोंट वांट टू गिव यू एनी लाइक score like frame here, like you know just within that frame you should develop anything, whatever you want, you develop anything, like 1 for starters, 2 for the veg, 3 for the non-veg, 4 for desserts, ऐसे कोई ये बनाएगा। किसी को लग रहा है सर मैं क्या करना हूँ, आई विल क्रिएट फॉर शॉपिंग एप्लीकेशन, 1 for mobile phones, 2 for laptops, ओके 3 for क्या होगा पेन ड्राइव, अगर इसमें भी तुमने ले लिया 2 for लैपटॉप, इसमें भी आ सकता है लैपटॉप, इसमें भी आएगा 1 for डेल लैपटॉप, 2 for लिनोवो लैपटॉप, ओके 3 for HP का लैपटॉप। क्लियर? तो अगर किसी ने प्रेस किया 1, तो 1 प्रेस कर दिया तो डेल का शोरूम में आ गए तुम लोग, यहाँ पे भी आएगा 1 for, अभी ये तुम्हारे ऊपर होता है डिपेंड। तो ये कैसे करोगे तुम लोग, इसके लिए तुम्हें डोमेन नॉलेज होना चाहिए। नाउ व्हाट इज डोमेन नॉलेज, ये देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, इसको बोलते हैं डोमेन। डोमेन का मतलब क्या, इसके लिए तुम्हें अलग अलग वेबसाइट पे जाना पड़ेगा लैपटॉप के, उसके अंदर देखना पड़ेगा ये लोग कैसे डेटा को फिल्टर आउट करते हैं, एंड देन ट्राई टू पुट दैट डेटा इन योर कोड विथ प्रॉपर मेथड्स, फंक्शन एंड क्लासेस। अभी तुम्हें क्लासेस नहीं सिखाया मैंने फिलहाल, बट यू क्रिएट इन 2 क्लासेस राइट नाउ। नो यूजर कैसे मेनू देगा ना, यूजर मेनू नहीं देगा, यूजर सिर्फ चॉइस देगा।
यूजर का मेनू सामने दिखता है, यूजर मेनू नहीं देने वाला है यहाँ पे। फिलहाल तुम मेनू को मैंने कैसे हार्ड कोडेड करके रखा है, लुक एट दिस। इन फ्यूचर आई विल रीड दिस डेटा फ्रॉम डेटाबेस, इन फ्यूचर आई विल टेक दिस डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, अंडरस्टूड? ठीक है। ओके, डेटा यूजर नहीं देगा, डेटा तुम्हें एरे में लेना पड़ेगा। सपोज दिस इज योर एरे हियर, जस्ट टेक द एरे हियर, लुक एट दिस एरे। एक एरे लो, उसके अंदर डेटा रखो, ठीक है? ये एक मेनू का डेटा रहेगा, ऐसा ही दूसरा भी रखोगे, ऐसा ही तीसरा करोगे, क्लियर? कीप योर डेटा इनसाइड अ एरे और उसको डिस्प्ले करो, ठीक है? हार्ड कोडेड वैल्यू रखो, डोंट टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, डोंट टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, don't take this value from the user. Okay, chalo, now I will stop the session and will continue Monday evening, not tomorrow now, clear? I hope so I will get some good applications from you people. Okay, let's see. Okay, chalo, bye.